students, welcome you all in the virtual learning classes as we have been started from last few days. So you know that we all are learning very good, very nicely. We are listening all lectures and parallelly we are completing both. That is, we can say that your literature part as well as grammar part. So students, today I am going to teach you the part of your supplementary second chapter, and its name is The Adventures of Toto. Here, Toto, as you take the name Toto, it suggests some, we can say that it is the name of cat or dog, but no, it's the name of monkey. So how the mischievous and docile the monkey is, we are going to learn through the lesson. Okay? So I will try my best to speak in Hindi, but at the starting I am only use English. Okay guys, because you have to learn English very well, and as you are in 9th standard, then also English is a, we can say that, international language, and we have to communicate in English only. So that is why let's start your second chapter, and again it is written by Ruskin Bond. You know Ruskin Bond is the author. Its unique speciality is that he is always explaining nice morals through some beautiful stories. So with this, let's start the lesson. Here, before starting the lesson, they have given or they asked a question to us, and the question is, have you ever had a baby monkey as a pet? And its answer is, Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous. Okay, we have to find in this chapter that monkeys are always mischievous. They are not, we can say that, simple guy or they are very easy. No, dog is very simple, we can say that pet. It is listening to us very well, but monkey is opposite of it. So what type of mischievous activities that Toto is doing here? Let's see. So at the starting, the author is saying that grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी है कि जो ऑथर के दादाजी हैं वो टोटो को लेके आते हैं एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Actually here, grandfather has made his private zoo in his house itself only. So whenever he had seen the monkey, the thought coming in his mind that I have to buy one monkey because this is a very, we can say that, attractive. The monkey is having a very attractive look. तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो, तो एक जो टोंगा ड्राइवर था, टोंगा पता है तुम लोगों को, तो वो कार्ट में से उसने मंकी को एक रस्सी से बांध के रखा था, और वो जो मंकी है वो, तुमको पता है मंकी कैसे देखते हैं, उनको देख के हमको हंसी आती है, तो एक ऐसे बांध के रखा था उसको. उसके ऊपर किसका ध्यान गया? दादाजी का. और दादाजी ने सोचा कि चलो मैं अभी ये जो मंकी है इसको मैं खरीद लेता हूँ, इसलिए उन्होंने उसको कितने रुपीस में खरीदा? 5 रुपीस में. अभी क्या होता है देखो, और उन्होंने सोचा कि चलो मेरे पास इतने सारे दूसरे मंकीज हैं तो मैं इसको भी मेरे साथ ऐड कर लेता हूँ. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं ग्रैंडफादर ने मंकी का नरेशन कैसे किया है. हाउ वाज द मंकी मींस इट वाज लुकिंग. देखते हैं क्या है. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. यहाँ पे उसके बारे में बोला है देखो. Actually, Toto was very pretty. वो बहुत ही सुंदर था दिखने में. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसके जो आईज है उसमें एक चमक थी, और उसके आईब्रोज जो थी वो थोड़ी अंदर के साइड में थी. फिर उसके टीथ मोती की तरह चमक रहे थे. द टीथ ऑफ द टोटो हैज कंपेयर्ड विद पियरली वाइट, यानी मोती की तरह उसके दांत जो थे वो वाइट थे. और वो मंकी कैसे हंसते हैं तुमको पता है, तो जब वो हंसता था एकदम विचित्र वियर्ड तरीके से, तो उसके टीथ जो है वो दिखते थे. तो कभी कभी ऐसा लगता था उसको देख के कि जो एंग्लो इंडियंस पीपल होते हैं, तुमने देखा होगा वो लोग थोड़े अलग होते हैं दिखने में. एंग्लो इंडियंस, अगर उनकी लेडीज भी इसको देख ले तो वो भी डर जाए. यानी इस तरह का नरेशन ग्रैंडफादर ने टोटो का किया हुआ है. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स. उसके फिंगर जो है, पूरे हाथ के बारे में है, उसकी स्किन जो है वो ड्राई थी, इसे सूखे सूखे, जैसे उसके ऊपर ऐसे क्रैक्स पड़े होते.
रिंकल नहीं बोलेंगे, क्रैक्स पड़े हुए, इस तरह से सूखी उसकी स्किन दिख रही थी, मानो कि जैसे उसकी स्किन जो है वो सालों से सूरज के अंदर तप रही हो। इस तरह का नरेशन ग्रैंडफादर ने मंकी के बारे में किया है। एंड yet his fingers were quick and wicked and his tail while adding to his good looks, और उसके जो फिंगर्स थे वो wicked थे, wicked यानी नॉट गुड, ऐसे टेढ़े मेढ़े और अलग ही थे, दिखने में अच्छे नहीं थे, थोड़े विचित्र तरीके के उसके फिंगर्स थे। और यहाँ पे बोला हुआ है देखो his tail while adding to his good looks, और उसकी टेल जो थी वो उसकी सुंदरता में और ब्यूटी ऐड करती थी। सो ग्रैंडमदर यहाँ पे बता रहे हैं, सॉरी ना ग्रैंडफादर believed a tail would add to anyone's good looks, also serve as a third hand. He would use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be of reach of his hands. Grandfather ने यहाँ पे बोला है कि the tail has given a beautiful look to monkey, that is Toto, and he is saying that it is like a third hand of it. वो उसका जो टेल का यूज है वो थर्ड हैंड की तरह करता था। कैसे? whenever you want to climb on any trees, किसी ट्रीज के ऊपर अगर उसको चढ़ना हो, या if any delicacy means tasty food, if he doesn't want to reach, अगर वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, then his tail is might be very useful there, and he using his tail therefore taking out that delicious food. अगर उसको कोई अच्छी चीजें लगे तो हाथ से तो नहीं ले सकता, तो पूंछ जो थी उसकी टेल, उससे वो जो क्या बोलते हैं खाने की चीजें हैं, जो टेस्टी थिंग्स है वो चुरा लेता था। यानी उसका जो एक टेल है, इट इज लाइक अ थर्ड हैंड टू हिम। नो, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट विथ व्हेन ग्रैंडफादर बॉट्स होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। ग्रैंडमदर जो थी उनको ये अच्छा नहीं लगता था, वो चिढ़ जाती थी। फर्स्ट उनका फेस एकदम गुस्से में आ जाता था, वो ऐसे एप्रिशिएशन नहीं दिखाती थी, और वो हमेशा ग्रैंडफादर को डांटते रहती थी कि आप क्या नया नया लेके आते हो, क्योंकि ग्रैंडफादर की आदत थी वो कुछ ना कुछ, कभी बर्ड्स, कुछ एनिमल्स, अभी उनके जू में कौन से एनिमल्स थे वो भी हम लोग देखेंगे, तो नए नए एनिमल्स को अपने यहाँ पे वो लेके आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। अभी यहाँ पे ऐसे बोला हुआ है देखो कि फादर ने बोला कि मैं छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल्स लेके आता हूँ, तो भी मेरी वाइफ मुझे इतना डांटती है, जब मंकी को देखेगी तो क्या होगा पता नहीं। तो वो उनके मन में ऐसा डर था कि अभी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि कुछ समय तक मैं टोटो को, मेरी जो वाइफ है, यहाँ पे उनको ग्रैंडमदर बोला है, उनसे दूर रखता हूँ, ताकि उनको मैं बताऊँगा ही नहीं कि मैं ऐसे कुछ लेके आया हूँ। सो अभी यहाँ पे वो क्या करते हैं देखो, उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट तो उन्होंने रखा है। विच सीक्रेट ही हैज केप्ट कि टोटो मंकी ही हैज ब्रॉट देयर, बट ही डिसाइडेड टू नॉट शो टू हर टू हिज वाइफ। उन्होंने डिसाइड किया कि ही वांटेड टू कीप इट सीक्रेट, उनको ये बात को सीक्रेट रखना था, इसलिए उन्होंने ये बात को शेयर किया ही नहीं। किसके साथ? ग्रैंडमदर के साथ। अभी वो कहाँ रखते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि grandmother and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to peg a fasten into the wall. अभी ग्रैंडफादर और उनका पोता यानी ऑथर हिमसेल्फ, उन्होंने ऐसे सोचा कि ये जो टोटो है उसको, जो ऑथर का बेडरूम था उसकी एक छोटी सी क्लोजेट था, क्लोजेट में छोटी सी जगह थी, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इसको बांध के रखते हैं। टू टेक ए पेग, पेग यानी कील होता है ना, अपने दीवार के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं, तो वो जो नेल है उसको पेग बोला है। यहाँ पे खूंटे पे लगा के रखते हैं, ऐसे नहीं अपने कपड़े लटकाते हैं हैंगर की तरह, तो एक हैंगर जैसा वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं वॉल पे, और वहाँ पे टोटो को क्लोजली वॉल के पास में टाइटली बांध देते हैं, ताकि दादी को पता ही नहीं चलेगा, और दादी इतने कोने में क्यों जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इफ वी वांट टू कीप द सीक्रेट टू दिस और फ्रॉम ग्रैंडमदर, then they have decided to keep the monkey in one closet, the room besides to the author's, that is a small closet, and so they decided to hang the monkey with rope to a peg. फिर उन्होंने उसको बांध तो दिया, फिर क्या हुआ है? A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. जब वो थोड़े समय बाद आए
So they were shocked to see the scenario that had been made by Toto. जब वो वहाँ पे आए तो शॉक हो गए, अरे बाप रे क्या हो गया, इसने क्या कर दिया यहाँ पे। मंकी ने क्या किया देखो, ग्रैंडफादर ने अपने रूम के अंदर ऑर्नामेंटल पेपर्स है वैसे नहीं, कुछ पेंटिंग्स या कुछ इंपॉर्टेंट पेपर ऐसे लगाए हुए थे, चिपकाए हुए थे। तो उसको देख के ग्रैंडफादर कुछ शॉक हो गए। क्यों? क्योंकि मंकी ने क्या किया देखो, यहाँ पे उसने वो सारे पेपर को फाड़ दिए, पूरे ऐसे नाखून से उसको पूरे के सारे पेपर फाड़ दिए। अभी जो वॉल थी, पहले वो ऑर्नामेंटल ऐसे पेपर जैसे हमने नहीं वॉल को सजाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपने वैसा भी ले सकते हैं कि वॉल को सजाने के लिए अपने वॉल पेपर लगाते हैं, पता है। तो उसका यूज हम लोग यहाँ पे ऑर्नामेंटल पेपर की तरह मीन्स वही अज्यूम करते हैं, चलो। तो उन्होंने पूरा वॉल पेपर निकाल दिया, किसने? टोटो ने। अभी क्या दिख रहा था? ओनली द प्लास्टर एंड सीमेंट, यानी कितना भद्दा बना दिया उसने, किसको? वॉल को। ये देख के ग्रैंडफादर शॉक हो गया, अरे क्या किया। फिर द पेग इन द वॉल had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. ओह, खतरनाक कर दिया इसने। क्या किया देखो टोटो ने, वो जो पैग था उन्होंने जो दीवार के अंदर लगाया हुआ था कील की तरह, वो उखड़ चुका था, वहाँ पे वो दिख नहीं रहा था उन लोगों को। और ये जो ऑथर था उसका एक स्कूल का ब्लेजर था, पता है स्कूल में ब्लेजर होता है, काफ़ी स्कूल यूज करती है यूनिफॉर्म के तौर पे, वो ब्लेजर को पूरी तरह से फाड़ दिया। श्रेड्स का मीनिंग ऐसे अलग अलग उसके धागे धागे हो गए सब। किसने किया ये? टोटो ने। देन आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर would say, but grandmother didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. ऑथर डर गए, उनको ऐसा लगा कि अभी ये बात अगर दादी को पता चली तो दादी का रिएक्शन क्या होगा। बट ग्रैंडमदर वॉज अ वेरी कूल पर्सन, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। टोटो का परफॉर्मेंस देख के वो खुश हो गए। Grandmother was very pleased after seeing the performance or whatever the mischievous work done by Toto, क्योंकि उसका ऐसे mischievous work उन्होंने देखा और उसको देख के तो ग्रैंडफादर तो खुश हो गए, अरे वाह चलो मंकी है, अपना काम तो करना ही चाहिए ना, वो ऐसे चुपचाप कैसे बैठेगा। जैसे तुमको मैं एग्जांपल देती हूँ, डॉग एंड कैट। ओके, डॉग जो होता है वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, पंक्चुअल होता है। तुम लोग अगर उसको बोलोगे ना यहाँ बैठा रहे, तुम लोग उसको बंद करके जाते हो, जब घर पे आओगे तभी भी वो वहीं पे बैठा हुआ मिलेगा। ये डॉग का हुआ। और कैट को तुम लोग बोलो यहीं पे बैठना, वो कभी नहीं बैठेगी, वो ऐसे कुछ काम करेगी और बाद में तुम लोग जब आओगे तो चुपचाप वहाँ पे बैठ भी जाएगी जगह, वो कैट होती है। वैसे ही मंकी है। ओके, इन लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि चलो टोटो है, मंकी है, बहुत अच्छा है दिखने में, दादाजी उसको लेके तो आते हैं। दादी को ये चीज़ पसंद नहीं होती क्योंकि जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एवरी टाइम ही ब्रिंग्स न्यू पेट एट इज होम, हर बार वो नया नया पेट अपने घर पे लेके आते थे, जिसको देख के दादी को भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए उन्होंने दादी से सीक्रेट रखने की कोशिश की। बट अभी तुम लोग सोचो कि इज इट पॉसिबल कि वो लोग सीक्रेट रख पाते दादी से? नहीं, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसने क्या क्या किया। ग्रैंडफादर या ऑथर का जो रूम था वो पूरे वॉलपेपर फाड़ दिया, फिर जो ऑथर का खुद का ब्लेजर था स्कूल का पहनने का, वो पूरी तरह से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओके, मीन्स अभी वो दादी को, ऑथर तो डर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी इफ दादी कम टू नो दिस थिंग, अगर दादी को ये चीज़ पता चली तो दादी का रिएक्शन क्या होगा, सोच में पड़ गए। बट ग्रैंडमदर जो ग्रैंडफादर जो थे वो मस्त थे, कोई बात नहीं देख लेते, चलो तो उन्होंने कुछ तो किया, इससे वो बहुत खुश थे। फिर क्या हुआ देखो, he is clever, said grandfather. Given time, I am sure he would be tied the torn pieces of their blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी ने क्या ऑब्जर्वेशन किया देखो। अभी देखो जो लोगों के पास पेट होते हैं ना, they were good observers and very kind and generous person. उनमें जो लोग पेट पालते हैं उनकी अंदर, हार्ट के अंदर दया भी बहुत होती है, और वो लोग जो होते हैं वो मीन्स ऑब्जर्वेशन उनका बहुत जोरदार होता है। तो यहाँ पे दादाजी ने क्या ऑब्जर्व किया कि टोटो ने यहाँ पे जो भी काम किया हुआ है, ओके, तो वो बहुत होशियार है। तो ऑथर ने बोला कैसे दादाजी, आप कैसे बोल सकते हो कि ये बहुत होशियार है? तो उन्होंने बोला कि उसको थोड़ा टाइम दे, फिर वो क्या करेगा पता है, तेरे जो ब्लेजर के उसने पूरे रस्सी रस्सी अलग कर दिए हैं धागे धागे, उससे वो रोप बनाएगा, और रोप बनाने के बाद ही विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो में से भाग जाएगा। क्योंकि मंकी को हम लोग कभी भी एक रूम के अंदर तो बंद रख ही नहीं सकते,
समझ में आ रहा है? जैसे देखो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही ग्रैंडफादर ने ये बोला हुआ है कि जब वो टोटो को देखते हैं पहली बार, तो उसका जो टोंगा ड्राइवर जो मालिक होता है उसने उसको बांध के रखा है, पर जहाँ बांधा है उससे काफी दूर वो ऊपर बैठा हुआ है और आसपास देख रहा है। यानी इन शॉर्ट इससे हमें पता चलता है कि मंकी जो है वो कभी भी एक रूम में तो बैठ ही नहीं सकते, उनको हमें खुला मैदान, सबसे पहली बात तो वी कांट डू एज अ पेट मंकी। मंकी को हम लोग पेट की तरह तो कभी पाल ही नहीं सकते, क्योंकि ही इज नॉट अ पेट, वो रह ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज वेरी फ्री। उसको ऐसे बंधन और वो सब अच्छा नहीं होता है, तो वो कैसे रहेगा? और दादाजी ने उसको इस तरह से रखा था, तो दादाजी बोल रहे थे ये होशियार है बहुत, इसने तेरे जो कोट था उसके टुकड़े तो कर दिए, देन वो उसका रोप बनाएगा और रस्सी बना के रोप की तरह बना के ही विल एस्केप फ्रॉम द विंडो, विंडो से वो अपने आप का एस्केप कर लेगा यहाँ से। फिर आगे क्या होता है? His presence in the house is a secret. अब तक वो घर के अंदर है ये किसी को पता नहीं था, स्पेशली ग्रैंडमा को, दादी को तो पता ही नहीं था कि जो कोई घर में आया है, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे। क्यों अनजान थे तुमको पता है? क्योंकि उसको एक रूम के अंदर बंद करके रखा था। फिर क्या हुआ देखो, देन Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandmother's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अभी देखो यहाँ पे एक नैरेट किया हुआ है कि टोटो जो था उसको दादाजी ने सोचा कि we have to transfer it to other pets because he will be comfortable there. उन्होंने सोचा कि जो दूसरे हमारे पेट है उनके यहाँ इसको रख देते, शायद उनको देख के ये उनके साथ घुल मिल जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, टोटो को जो दूसरे पेट थे उनके साथ रख दिया। वो जो दूसरे पेट थे उसमें कौन कौन था देखो, वहाँ पे दे वर वेरी सोशियली टुगेदर, मीन्स वो बहुत अच्छी तरह से सारे एनिमल्स रह रहे थे। उसमें था टॉर्टोइज, पेयर ऑफ रैबिट्स, 2 रैबिट्स थे, और टेम स्क्विरल, स्क्विरल भी थी, एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट, और गोट भी थी उनकी। ओके, फिर बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, पर उसने वहां उन्होंने रखा तो करे, पूरे दिन तो चलो ठीक था, रात को उसने ये एक भी पेट को सोने नहीं दिया उसको। क्योंकि क्यों देखो, सो द ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। फिर दादाजी ने सोचा इसको अगर मैं यहाँ रखूंगा, दिन तो चलो निकल जाएगा क्योंकि सब लोगों को ऑब्जर्वेशन होता ही है, बट रात को अगर इसने ये एनिमल्स को हार्म पहुंचाया तो हमारे हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। और दूसरे ही दिन उन लोगों को, दादाजी को पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था। सहारनपुर इज द नेम ऑफ द सिटी टू कलेक्ट द पेंशन। तो अभी उन्होंने क्या सोचा कि अगर मुझे मॉर्निंग में जाना है पेंशन लेने के लिए, तो कहाँ जाना था देखो, देहरादून के अंदर, सॉरी देहरादून से उन्होंने सोचा कि सहारनपुर उनको जाना था, मीन्स दे वर यूज्ड टू लिव इन देहरादून। वहाँ से वो सहारनपुर गए और उन्होंने सोचा कि मैं मंकी को मेरे साथ ले लेता हूँ, क्योंकि मैं मेरे साथ रहूँगा तो दादी को भी पता नहीं चलेगा, पोते को भले पता है पर दादी को पता नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने वही सोचा था कि इट इज वी हैव टू कीप सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को मेरे साथ लेके जाता हूँ। अभी वो देखो अपने साथ लेके जाते हैं तो ट्रेन में उनके साथ क्या होता है, वेरी कॉमेडी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बहुत ही मजा आएगा। देखो यहाँ पे बोला है, अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfather on this that trip, but he told me about it afterwards. और अनफॉर्चुनेटली जो ऑथर थे वो दादाजी के साथ जा नहीं पाए क्योंकि उनका कुछ स्कूल का प्रॉब्लम था या स्कूल में उनको जाना होगा। दादाजी ने उनको बोला कोई बात नहीं, तू भले मेरे साथ नहीं आना, बट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, जो भी उनके साथ होगा वो बाद में उसको बता देंगे। इसलिए दादाजी अकेले सहारनपुर पहुंचे एंड a big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. अभी उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा कैनवस का बैग लिया, ओके, और उसके अंदर किट बैग है, जैसे नहीं तुम लोगों का लैपटॉप का बैग होता है उस तरह का उन्होंने ऐसे स्क्वायर में एक बैग लिया, उसके अंदर नीचे स्ट्रॉज डाली, जैसे ड्राई घास आती है ना, वो बोलेंगे हम लोग, वो पेप्सी पीने की स्ट्रॉ नहीं, ड्राई जो ग्रास होती है वो उन्होंने रखी, उसके अंदर टोटो को रखा, बैग का बंद कर दिया कवर, टोटो का नया एबोर्ड, एबोर्ड मीन्स होम, ओके, द मंकीज आर यूज्ड टू लिव देयर, द प्लेस इज कॉल्ड एबोर्ड।
तो अबोर्ड सिंस हियर रिजेंबल्स टू होम, तो ये टोटो का घर हो गया, यानी अभी टोटो वहाँ पे रहने वाला था थोड़े समय के लिए। फिर बाद में क्या हुआ देखो, when the bag was closed there was no escape। एक बार बैग बंद कर दिया तो मंकी वहाँ से निकल नहीं पाएगा चाहे वो कुछ भी कर ले। ओके, फिर क्या हुआ, टोटो could not get his hand through the openings and the canvas was too strong for him to bite his way through। फिर टोटो कुछ भी कर ले, जैसे मैंने तुमको बोला बैग से वो बाहर नहीं आ सकता था, वो हैंड भी बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि द कैनवस बैग वाज टू टफ और बहुत ही मजबूत बैग था वो अगर उसको कुछ बाइट्स भी मारता है, दांतों से भी वो तोड़ने की कोशिश करता है तो भी वो जो बैग है उसको वो खोल नहीं पाता था क्योंकि उसकी ओपनिंग जो है वो बहुत ही टाइट और दे आर वी कैन से दैट गुड इनफ, बहुत अच्छे थे। सो वो बैग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टोटो कितने भी एफर्ट्स करता है बट ही वाज वी कैन से दैट अनसक्सेसफुल इन दैट, उसको सक्सेस नहीं मिलता बैग में से बाहर आने के लिए। आगे क्या हुआ देन, his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted the curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। जब अभी देखो स्टोरी स्टार्ट होती है, उन्होंने टोटो को बंद किया बैग के अंदर, साथ में बैग ली पकड़ा, दादाजी ने ऐसे सोचा कि कुछ भी हो जाए द मंकी विल नॉट एस्केप फ्रॉम दिस बैग बिकॉज द बैग वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, बैग में से मंकी बाहर नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो जंप करेगा तो बैग जमीन पे रोल डाउन होगा, यानी ऐसे गोल गोल घूमते घूमते जाएगा, या फिर जोर से अगर कोशिश करेगा तो बैग उड़ के दूसरी जगह पे जाएगा। जैसे तुमको पता है मंकी ऐसे एक ट्री में से जंप करके दूसरी जगह पे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, बस वही हुआ। जब वो देहरादून पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो दादाजी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल द people there, crowd of the people, all the crowd of people watching to them, पूरा क्राउड उनको ही देख रहा था क्योंकि बैग कभी रोल रोल घूमे, कभी बैग में ऐसे टेढ़े मेढ़े शेप हो तो लोगों को प्रॉब्लम होती है इसके अंदर है क्या, बराबर, तो लोग भी डर जाते हैं ना। हम लोग खुद कभी कभी किसी की बैग में अगर कुछ दिखता है तो हम लोग बोलते हैं देखो कुछ है, तो ये बैग रोलिंग भी कर रहा है, कभी कभी हवा में भी जंप कर रहा है, यानी कुछ जादू कुछ है क्या, कुछ ऐसे सब लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दादाजी बन गए। फिर आगे क्या हुआ देखो, टोटो रिमेन इन द बैग as far as Saharanpur but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his hand out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अभी देखो यहाँ पे हार्डवेयर दिया है तुमको, turnstile means a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to the vertical post allowing only one person at a time to pass through। तुम लोग पार्क में जब एंटर करते हो तो ऐसे तीन ऐसे गेट होता है, फिर उसको घुमा के अपने ऐसे एक अंदर जाते हैं, तो एट ए टाइम एक ही पर्सन अंदर जाता है, तुमने देखा होगा, उसको बोलते हैं टर्नस्टाइल। ग्रैंडफादर अंदर गए और वो टिकट कलेक्टर से टिकट ले रहे थे, उतने में टोटो ने गड़बड़ कर दी। क्या किया टोटो, देखो वहाँ पे बोला हुआ है कि टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, पोक्ड मींस टू कीप आउट, उसने उसकी गर्दन जो है उसको बाहर निकाला, टोटो ने उसकी गर्दन को बाहर निकालने के बाद और उसने ग्लीन स्माइल दिया, स्माइल यानी ऐसे जैसे मंकी हंसते हैं उस तरह से उसने स्माइल दिया, जिसको देख के टिकट कलेक्टर को लगा कि ये बैग में से क्या निकला है तो उसका वो स्माइल देख के दादाजी को तो ये बात का पता नहीं था ना, और वो टिकट कलेक्टर एकदम सरप्राइज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं स्टोरी को। टिकट कलेक्टर जब स्टॉप हुआ तो दादाजी का रिएक्शन, उनको कुछ पता ही नहीं है पीछे क्या हो रहा है, तो ये अभी क्या बोलते हैं क्लाइमैक्स है, तो हम लोग सोचते हैं अभी क्या होता है, तुम लोग भी सोचो, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो तुम लोग खुद पढ़ो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि टोटो ने जब उसका ऐसे स्माइल दिया मंकी की तरह, तो टिकट कलेक्टर का रिएक्शन क्या होगा, और ये बात दादाजी को पता नहीं है। तो देखते हैं, लेट्स एंजॉय द स्टोरी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा।